Praise Lord everyone मैं सबों से प्रेज लॉर्ड कहता हूँ and good evening. और सबों को मैं गुड इवनिंग भी कहता हूँ। It's such a privilege to spend the entire day in the Lord's presence. पूरा दिन खुदावंद की खिदमतगुजारी में उनकी मौजूदगी में बिताना बहुत बड़ी खुशी की बात होती है। And before we go into the worship message, let's look to the Lord in prayer. आज के वर्शिप मैसेज को देखने से पहले चले हम खुदा पर हमारी नजर डालेंगे और दुआ करेंगे। Our loving, living Heavenly Father, God of grace, mercy, and peace, we once again thank you and worship you because thou hast revealed thyself unto us, O Lord, through thy Son, Lord Jesus Christ, O Lord. What a privilege is to serve and to worship that living God. Even as we have come here to worship you, O Lord, help us so that we can worship you in spirit and truth, in the true meaning, O Lord, and help us so that we can be used only as instruments of righteousness, even as we minister thy word, O Lord. Considering all the good things that thou hast done to us, what can we offer, O Lord? But we can only worship you in spirit and in truth. Help us, even as we pray this prayer in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. आमीन। There is a quote by someone who says that we have learned nothing from history. किसी ने कहा था कि हमने तारीख से, हिस्ट्री से कुछ भी सीखा नहीं है And we remain the same. और हम जैसे के वैसे की जैसे ही रहते हैं। And the life's highest privilege is to worship the living, the loving God. और इंसान की जिंदगी का अव्वल मकसद होता है जिंदा खुदा की इबादत करना। And the mankind's supreme duty is to worship that living God. और इंसान का अव्वल फर्ज बनता है कि उस खुदा की इबादत करना। There's nothing that is required of us for to do in this world. इस दुनिया में इसके अलावा और करने के लिए हमारे लिए कुछ भी नहीं है। And from time immemorial, God has been seeking true worshippers. और इब्तिदा से खुदा हमेशा ढूंढते आया है कि हकीकी मोमिन जो इबादत करने वाले आबिद कहाँ है। That's why in John chapter 4 verses 23 and 24 he says the Father seeks true worshippers. इसीलिए हम पढ़ते हैं यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 4 और आयत नंबर 23 और 24 में कि खुदा आसमानी बाप ढूंढता है कि इस तरह के आबिद रहें। So dear friends, the search is on for true worshippers. तो सच्चे आबिद के लिए खुदा अपना खोज जो है वो जारी रखता है। And today it's our privilege to investigate who that true and ideal worshipper is. और आज हम देखने वाले हैं कि इस तरह के हकीकी सच्चे आबिद या इबादत करने वाला कहाँ है। There is a small historical book in the Old Testament called the book of Jonah. पुराने अहदनामा में एक हिस्टोरिकल किताब है जिसका नाम है योना, consisting of only 4 chapters, 48 verses. और इसमें 4 चैप्टर्स हैं और 48 वर्सेस हैं। But tucked up in this 4 chapters is one verse which is a verse of worship. लेकिन इन 4 आयतों के दरमियान एक आयत ऐसी है जो इबादत के लिए हम मुस्तमिल रख सकते हैं। Where Jonah says, यहाँ पे योना कहता है, I will sacrifice to you with a voice of thanksgiving that which I have vowed. I will pray. Salvation is from the Lord. वर्स नंबर Verse number 2 and verse 9. आयत नंबर 2 और बाब नंबर 2 और आयत नंबर 9। मैं हमद करता हुआ तेरे हुजूर कुर्बानी गुजरानूंगा, मैं अपनी नजरें अदा करूंगा, नजात यहोवा की तरफ से है। So this is tucked up in the almost in the middle of this book. ये आयत जो है इस किताब के बीचों बीच है। As we all know, he is worshipping from the belly of a big whale. हम जानते हैं कि ये बातें योना जो है मछली के पेट में से वो कह रहा है। This prophet Jonah is always picturized as a God's reluctant, disobedient prophet. योना के बारे में जब भी हम सोचते हैं तो हमें ये याद आता है कि वो फरमान बरदारी ना दिखाने वाले, सरकशी करने वाले नबी हैं। This is a true happening in the history. और ये हकीकत में तारीख में हिस्ट्री में हुआ था। Because Lord Jesus Christ even mentions about this fact. क्योंकि खुदावंद यीशु ने भी योना के बारे में जिक्र किया था। And he mentions it in Matthew chapter 12, 38 to 41 verses. और मत्ती की खुशखबरी बाब नंबर 12 और 38 to 41. 38 से लेकर 41 तक खुदावंद यीशु नोवा का योना का जिक्र करते हैं। If you read this 48 verses, अगर हम ये 48 वर्सेस को पढ़ेंगे, we can only see some negativities about this prophet. तो इन 48 आयतों में इस नबी के बारे में हम कुछ नेगेटिव थिंग्स ही हम देखते हैं। This prophet disobeyed God. He knew nothing about God's will.
ये योना नबी जो है ये सरकशी करता है, फरमान बरदारी नहीं दिखाता और खुदा के बरखिलाफ रहता है। and so on. And we preachers love to dwell on these negativities. हाँ, और जब भी योना के बारे में लोग बातें करते हैं या पैगाम देते हैं, इन नेगेटिव थिंग्स को लेकर ही बोलते रहते हैं। But in this middle of this 48 verses, there is this grand verse which says, I will sacrifice to you with the voice of thanksgiving. लेकिन इन 48 आयतों के बीचों बीच एक हम्द की आयत है जहां वो कहता है, मैं हम्द करता हुआ तेरे हुजूर कुर्बानी गुजरानूंगा। In 1 Corinthians chapter 10 and verse 6, the writer says, these things happened as examples for us. पहले कुरिन्थियों की किताब बाब नंबर 10 और आयत नंबर 6 में लिखा हुआ है कि ये बातें जो है हमारे वास्ते इब्रत ठहरी हैं। So what we'll do is, we'll set aside these negativities and dwell on the worship of Jonah. तो हम क्या करेंगे, इन नेगेटिव बातों को हम अलग रखेंगे और नोवा की इबादत जो है उस पर हम हमारा ध्यान रखेंगे। While doing so, we peep into God's heart. और ऐसे करते करते हम खुदा के दिल में भी जरा झांकेंगे। What is exactly God's heart? खुदा के दिल में क्या है? What are the characteristics? What does it desires of a true ideal worshipper? खुदा क्या चाहता है एक सच्चे मोमिन और आबिद की जिंदगी में, वो क्या तलब करता है? Before we proceed, let's give me a gist of these 4 chapters. आगे बढ़ने से पहले मुझे इजाजत दें कि मैं मुख्तसरन इन 4 अब्वाब के बारे में मैं बताऊं। In chapter 1, we learn the lesson of God's presence. पहले बाब में हम पढ़ते हैं खुदा की हुजूरी के बारे में। How important it is for us to have God's presence at all times with us. हमारी जिंदगी में हमेशा खुदा की हुजूरी को या उसकी मौजूदगी को बरकरार रखना कितना अहम बात होती है, हम वहां समझते हैं। Sorry. What about chapter 2? और बाब नंबर 2 के बारे में क्या बोला जा सकता है? We learn the lessons of God's pardon. खुदा की मुआफी के सबक वहां हमें मिलती हैं। The greatest experience of any man is to experience his forgiveness. एक इंसान की जिंदगी में सबसे बहुत बड़ी बात वो होती है जब वो खुदा से मुआफी हासिल करता है। What a joy fills our heart when God says, I have forgiven you. जब खुदा हमसे कहता है कि ए मेरे बेटे मैंने तेरे गुनाह माफ कर दिए, तो कितनी बड़ी बयान से बाहर की खुशी हमारे दिलों में छा जाती है ना। What about chapter 3? और बाब नंबर 3 के बारे में क्या है? We learn the lessons of God's power. यहाँ पे खुदा की कुदरत के बारे में हम जानते हैं। What a great thought it is to live when we know that the powerful God in this universe is beside you at all times. जब हम जानते हैं कि इस तमाम कायनात के ताकतवर जोरावर खुदा हमेशा आपके साथ रहते हैं, अगर हम समझेंगे तो इसको जानकर जीना कितनी ही बड़ी बात होती है। And fourthly, the 4th chapter teaches us the lesson on God's pity. और चौथा बाब जो है इसमें खुदा के रहम के बारे में हम देखते हैं। The moment we turn to him with repentance, he always shows his pity on us. जब भी हम उसकी तरफ रुजू करते हैं तो खुदा हमें मुआफ करता है, क्योंकि उसके दिल में हमेशा हमारे लिए रहम भरा हुआ है। God's anger, God's wrath is turned into compassion. खुदा का गुस्सा, खुदा का कहर जो है वो रहम में तब्दील हो जाते हैं। After learning the gist of this historical book, तो इस हिस्टोरिकल किताब को, योना को पढ़ने के बाद we know this is a very familiar story. हमें पता है कि ये तो बहुत फेमिलियर स्टोरी है। God commanded the prophet Jonah to go to the Ninevites and spread the gospel message. तो खुदा वहां कहता है योना से कि तू नीनवे जा और वहां जाकर खुशखबरी की मनादी कर। It's a message of salvation, a message of hope to the Ninevites. वहां जाकर उम्मीद का पैगाम नीनवे लोगों के लिए तो सुना। But Jonah decided not to go to that great city. लेकिन योना क्या फैसला बांधता है? वो फैसला बांधता है कि मैं उस बड़े शहर को नहीं जाऊंगा। And instead he moved in an opposite direction. और इसके अलावा वो क्या करता है? वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने लगता है। As Jonah was fleeing away from God, और जैसे ही योना इस तरीके से खुदा से दूर होने लगता है, भागने लगता है, a disaster struck by which
ship in which was sailing was facing a storm. जिस किश्ती में वो जा रहा था उस पर बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ती है There was panic among the sailors. और वहां के नाखुदाओं पर मतलब वो सेलर्स पर बहुत डर छा जाता है When they were questioning who is the cause of all this disaster, तो जब उन लोगों ने जांचने लगा कि इस मुसीबत की वजह कौन हो सकता when है the problem arose, Jonah said, I am the problem. और जब सवाल पूछा गया तो आखिरकार योना आगे आकर कहता है कि मैं ही इस मुसीबत का जड़ हूं When the sailors were asking about his credentials, जब वो सेलर्स जो हैं उसके बारे में तफसीलात पूछते हैं in chapter 1 and verse 12, he says, पहला बाब और आयत नंबर 12 में वो कहता है I am a Hebrew fearing the Lord God, the Creator. वो कहता है मैं तो इब्रानी शख्स हूं मैं तमाम जमीन और आसमान के खालिक की इबादत करने वाला हूं For the storm to come, I am the problem. इस तूफान को मतलब ये तूफान जो आया है इसकी वजह मैं ही हूं I will also show you the solution, he says. और वो कहता है कि इसका हल भी मैं ही बताऊंगा What is the solution? उसका हल क्या है Throw me into the sea and the sea will become calm. वो कहता है मुझे इस समुंदर में फेंक देना तब ये समुंदर जो है ये थमा जाएगा He was responsible for endangering the life of the sailors in the ship. ये नबी जो है उस किश्ती में उस नाव में सवार बाकी लोगों की जानों को खतरे में डालने की वजह बन गया है This book of Jonah starts with God's word. हम देखते हैं कि ये किताब योना जो है ये खुदा के कलाम से शुरू होता है and ends with God's compassion. और उसके बाद हम देखते हैं कि ये किताब खुदा के रहमत से खत्म होता है The God's word in those days, the God's word in these days is the same. उन दिनों में खुदा का कलाम और आज के दिन में भी खुदा का कलाम यकसा है What's those words? वो खुदा का कलाम क्या है It's the words of grace, compassion and mercy. रहम और करम के और बहुत बड़ी रहमत के कलाम है उसका And these attributes of God encompasses the whole Bible. और खुदा के ये सिफत जो हैं या किरदार जो है तमाम बाइबल में हम देखते ही आते हैं This book is not about Jonah, but tells us how God operates in our life. ये किताब योना के बारे में लिखा नहीं गया बल्कि इसलिए लिखा गया कि खुदा इंसानों से किस तरह पेश आता है It tells us how we respond when the will of God is revealed to us. और इस किताब में हमें ये भी पता चलता है कि जब खुदा अपनी मर्जी इंसानों को दिखाता है बताता है कि इंसान का रद्द अमल किस तरह होता है This book reveals God's burden for the mankind. इस किताब में खुदा का बोझ इंसानों पर उनकी नजात पर कैसा है हम देखते हैं That burden is all the mankind should experience His love. खुदा का बोझ ये है कि तमाम इंसान उसकी रहमत को जाने परखें So as we investigate this book, we shall squeeze some lessons on worship. तो आज जैसे ही हम इस किताब के बारे में मुताला करते जाएंगे चंद बातें इबादत के मुतालिक हम इसमें से लेंगे And Jonah says, I will sacrifice to you with a voice of thanksgiving. That which I have vowed, I will pay. Salvation is of the Lord. 2 की 9वीं आयत में योना कहता है मैं हम्द करता हुआ तेरे हुजूर कुर्बानी गुजरानूंगा मैं अपनी नजर अदा करूंगा नजात यहोवा की तरफ से है The greatest rescue act ever undertaken by any person in the history of mankind is that of our Lord Jesus Christ. इस दुनिया में हर एक इंसान से भी अजीम अमल जिसने किया था जो किया गया था वो है हमारे खुदावंद यीशुआ से जो किया गया है Who came all the way from heaven to save sinners. खुदावंद यीशुआ आसमान से इतना दूर हमारे वास्ते गुनाहगारों को नजात देने के लिए आए हैं Now what's the lesson I've been telling that we shall learn from this book? और वो क्या सबक थी जो मैंने आपसे कहा कि इस किताब से हम जान सकते हैं Lesson number 1. पहली सबक Worshipper's heart unites with the heart of God. इबादत करने से हमारा कल्ब दिल जो है खुदा के दिल से जुड़ जाता है That person is a true worshipper. हाँ जिसको इस तरह का एहसास रहता है जो इस तरह महसूस करता है वो है सच्चा आबिद That person is a very ideal worshipper. वो होता है अफजल आबिद
God's word, God's will was very, very clear in letting Jonah about his intention to save the Ninevites. खुदा ने योना को लेकर अपनी मर्जी साफ तरीके से बताया था, योना को बताया था कि उसकी मर्जी ये है कि गुनहगारों को नजात मिले। Jonah's heart could not resonate with the heart of God. लेकिन योना का दिल जो है वो खुदा के दिल से जुड़ नहीं सका। He disobeyed God's will. खुदा का फरमान जो है उसकी सरकशी की थी, नाफरमानी दिखाई थी योना ने। Dear friends, sometimes when we disobey God's will, अजीजों, जब भी हम खुदा की मर्जी के खिलाफ जाते हैं, when we go against God's will, खुदा की मर्जी के मुखालिफ बनते हैं, everything seems to be going fine with us. तो हमें दिखता है ऐसा कि सब कुछ हमारे साथ अच्छा ही भला ही हो रहा है। The same thing happened with Jonah. योना से भी ऐसा ही कुछ हुआ था। There was a ship ready for him, waiting on time. हाँ, वहाँ एक किश्ती थी जो तैयार थी, वक्त पर उसको मिल गई थी। There was enough money to pay for the fares. उस जहाज पर जाकर चढ़ने के लिए योना के पास काफी रकम भी मौजूद था। And dear friends, this prophet Jonah was traveling in an opposite इस direction. तरीके से ये नबी योना जो है जहाज पर सवार होकर ऑपोजिट डायरेक्शन में वो चल रहा है। There was this heart of God. It had a burden to save the Ninevites. लेकिन खुदा के दिल में खुदा का बोझ क्या है? खुदा चाहता था कि निनवे के लोगों को नजात दे। But Jonah did not have that heart. लेकिन योना में उस तरह का दिल नहीं है। An ideal worshipper always shares the burden of God. एक सच्चा आबिद जो होता है वो हमेशा खुदा का दिल जो है उसके पीछे वो जाते रहता है। An ideal worshipper always knows the will of God and obeys it. एक सच्चे या हकीकी आबिद जो होता है खुदा की मर्जी मुकम्मल तरीके से वो जानता है। My dear friends, we cannot be living a wayward life and still claim that we have worshipped God. अजीजों, हम तो मनमानी की जिंदगी जीते हुए हम खुदा की मर्जी को जानते हैं करके बोल नहीं सकते। There is a man in the Bible called David, and the phrase that is attached to his name is a man after God's own heart. बाइबल में हम एक शख्स को देखते हैं जिनका नाम दावीद है और उसको लेकर एक जुमला उसके नाम से जोड़ा जाता है और वो जुमला ये है कि वो मेरे दिल के मुताबिक जीता है या रहता है। He says, Lord, I delight to do thy will. वो हमेशा कहते रहता था कि ऐ मेरे खुदा यहोवा, मैं तेरी मर्जी करने में खुशी रखता हूँ। Your law is in my heart. तेरी तोरा जो है वो मेरे दिल में है। I delight to do thy will and your law is within my heart. तेरी मर्जी करने में मुझे खुशनुदी है और तेरा कलाम मेरे कल्ब में है। I have proclaimed your good tidings in the great congregation. वो कहता है कि मैं बड़ी जमात में तेरी सिताइश में करूंगा। I will not restrain my lips. मैं मेरे होंठों को मैं बंद नहीं रखूंगा। I have spoken about your faithfulness and salvation. तेरी वफादारी और तेरी नजात के बारे में मैं जिक्र करते रहूंगा। I will not conceal your loving kindness. तेरी शफकत को मैं छुपा के पोशीदा नहीं रखूंगा। My dear friends, this is worship. अजीजों, ये होती है इबादत। Telling his experience about God. खुदा को लेकर जो एहसास या जो तजरिबा उसका है उसका बयान करना। So this is lesson number 1. यह है पहली सबक। An ideal worshipper heart always unites with the heart of God. एक हकीकी आबिद का दिल जो है वो हमेशा खुदा से जुड़ा हुआ रहता है। What is point number 2? और दूसरी सबक क्या है? A worshipper's hearts know God's desires. आबिद, एक सच्चे आबिद की जिंदगी में वो खुदा की मर्जी से वाकिफ रहता है। What is God's desire? खुदा की मर्जी क्या है? He expects you to praise him for what he is. वो जो है उस बात को लेकर उसकी तमजीद गाएं हम, ये खुदा की मर्जी होती है। And he expects you to offer thanksgiving for what he has given to us. इतना ही नहीं बल्कि जो कुछ उसने हमें बख्शी है उन सारी चीजों को लेकर उसकी हम शुक्रगुजारी करें, ये खुदा की मर्जी होती है। That's exactly what Jonah is doing. योना वही कर रहा है। I will sacrifice to you. वो कहता है मैं तेरे सामने कुर्बानी गुजरानूंगा। With a voice of thanksgiving. शुक्रगुजारी की आवाज उठा रहा है। My dear friends, worship is the written gift we give to God. अजीजों,
इबादत क्या है? इबादत वो चीज है जो एक रिटर्न गिफ्ट जैसा है जो हम खुदा को देते हैं। It is praise, it is thanksgiving. वो इबादत में शुक्रगुजारी होती है और हम्दो सिताइश भी होती हैं। Frequently in worship, we see these words being echoed by worshippers. बार बार इबादत में आबिद लोग इन बातों को बोलते हैं, इबादत में ये बातें गूंज उठती रहती हैं। What shall I repay to the Lord for all the benefits that He has given to me? और वो बातें, वो जुमले ये हैं कि लोग कहते हैं बार बार के जितनी बरकतें खुदा ने मुझे दी हैं, इन सारी बरकतों के बराबर में मैं क्या दे सकता हूँ खुदा I will को। take up the cup of salvation and call upon His name. इसीलिए मैं नजात का प्याला उठाऊंगा और यहोवा के नाम में शुक्रगुजारी करूंगा। So we can label chapter 1 as a chapter of rebellion. इसीलिए हम योना की किताब में पहले बाब को सरकशी का बाब कह सकते हैं। And in chapter 1, He's in the ship and in the sea. और दूसरे बाब में वो जहाज में दिखता है और समुद्र के बीचों बीच आता है। Chapter 2 is a new beginning for Jonah. योना की जिंदगी में ये बाब नंबर 2 जो है एक नई शुरुआत है। He is in the belly of the great whale and it's a story of God's deliverance. बड़ी मछली के पेट में वो पहुंच जाता है और वहां से खुदा की नजात या रिहाई वो पाता है। Right beside me is a doctor हाँ, मेरे बाजू में एक डॉक्टर खड़ा है and he works in the hospital. वो तो अस्पताल में काम करता And the है most important department in a hospital is the ICU department. और अस्पताल में बहुत अहम हिस्सा होता है, डिपार्टमेंट होता है आईसीयू। That is called emergency unit. आईसीयू का मतलब होता है इमरजेंसी यूनिट। Practically, that was the situation in which Jonah finds himself. योना असल में इसी हालत में, इस तरह की हालत में पड़ जाता है। In that belly of the fish, it was almost like an ICU ward. उस मछली के पेट में रहकर उसको कैसा लगा हुआ होगा, उसको एक आईसीयू में भर्ती हुआ जैसा लगा होगा। And chapter 2, we know it's a prayer of Jonah. और हम देखते हैं कि बाब नंबर 2 में योना की दुआ है। But right at the end of the chapter 2, लेकिन इस बाब नंबर 2 के इख्तिताम में we see his prayer turns into worship. उसकी दुआ जो है इबादत में तब्दील हो जाती है। It's a story of God's deliverance. यहाँ पे खुदा की रिहाई, मतलब खुदा किस तरह से नजात या रिहाई बख्शता है, हम उन बातों को देखते हैं। God commanded the fish and it vomited Jonah. खुदा ने उस मछली को हुक्म दिया था और वो मछली बाहर निकलकर योना को उगल देती है। In chapter 2, Jonah and verse 2, I called out of my distress to the Lord and he answered me. योना की किताब बाब नंबर 2 और आयत नंबर 2, मैंने अपनी मुसीबत में यहोवा से ये दुआ की और उसने मेरी सुनी। The psalmist also has a similar experience. अगर हम मज़ाब नवीस को देखेंगे तो उसके पास भी ऐसा ही कुछ तजरिबा है। Psalm 118, many claim that it is the middle chapter of the entire Bible. हम देखते हैं कि तेहिल्लिम की किताब या मज़ामिर की किताब में साम 118 को अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये बाइबल का बीचों बीच रहने वाला बाब है। Before that 594 chapters and after that another 594 chapters. क्योंकि इस बाब के आगे 594 चैप्टर्स हैं, इसके बाद भी 594 चैप्टर्स हैं। So in this chapter, तो इस बाब में the psalmist says, मज़ाब नवीस फरमाता है, from my distress I called upon the Lord. मैं मेरी तंगी में, मुसीबत में से मैंने खुदा को पुकारा। The Lord answered me खुदा ने मेरी सुनी and set me in an open space. और मुझे बहाल करके बड़ी जगह में मुझे ले आया। My dear friends, is it not our experience? अजीजों, क्या ये हमारा भी तजरिबा नहीं है? And we call upon God only in a time of crisis. हम तो खुदा को जब भी हमें मुसीबत आती है तभी हम खुदा को पुकारते हैं। There is a English Telugu phrase which goes like this. तेलुगु में एक जुमला है जो ऐसा जाता है, దేవుని దగ్గర రావాలంటే డబ్బులన్న పోవాలా జబ్బన రావాలా. This is what Telugu proverb says. तेलुगु में लोग कहते हैं कि अगर एक इंसान खुदा के पास आना चाहता है तो उसके पैसे जो होते हैं, पैसे शायद खो गया हो या पैसे मालो असबाब मिट गया हो या उसको बड़ी बीमारी शायद आ चुकी हो। Either we should lose our job, lose our health, otherwise we don't come to God. हाँ, अगर हमारे कारोबार से हाथ धो बैठे या हमारी सेहत से हाथ धो बैठे तभी हम खुदा के पास आते, नहीं तो नहीं। We remember God only in a crisis. खुदा को सिर्फ और सिर्फ मुसीबत में ही हम, मतलब इंसान याद करता है। In that crisis, Jonah prayed
and it turned into worship and got a great इस deliverance. तरह की मुसीबत में ही योना भी खुदा को याद किया और खुदा ने उसे रिहाई बख्शी और तब वो हमद की कुर्बानी गुजरानता है। There are some phrases which are attributes of God. खुदा के किरदार के बारे में या सिफत के बारे में चंद बातें बाइबल में लिखी गई हैं। Hebrews 12:29 says, Our God is a consuming fire. इब्रानियों की किताब बाब नंबर 12 और आयत नंबर 24 में लिखा हुआ 29. 29 में लिखा हुआ है कि हमारा खुदा जो है वो भस्म करने वाली आग जैसा है। In the book of Nehemiah, you're a God of compassion. नहमिया की किताब में हम पढ़ते हैं कि वो रहमदिल खुदा है। In Psalm 68 and verse 20, God unto us is the God of deliverance. 68:20 साम्स की किताब में वो लिखा हुआ है कि हमारा खुदा हमें छुड़ाने वाला खुदा है And to him belongs the escapes from death. और मौत से छुड़ाना उसके हाथ का काम है। So what is the greatest characteristic? He's a God of deliverance. तो खुदा का बहुत बड़ा किरदार या सिफत क्या है? वो छुड़ाने वाला है। And if you have been delivered from that sin, from the enemy and the power of death, अगर आपको गुनाह से या मौत के कब्जे से या दुश्मन से रिहाई हासिल होनी है, definitely there should be a song of deliverance. तो अगर आपको रिहाई हासिल है हासिल हो गई है तो जरूर आप भी खुदा की इबादत करेंगे। In Exodus 15, Moses sings that song of deliverance. खुरूज की किताब बाब नंबर 15 में मोशे वो गाना गाता है। In Judges chapter 5, Deborah sings a song of deliverance. काजी की किताब बाब नंबर 5 में, कुजात की किताब में बाब नंबर 5 में देबोरा वो गाना गाती है। Miriam also has a song of deliverance. मिरियाम के मुंह में भी रिहाई का गाना है। So that song of deliverance is worship. तो ये गाना जो है, ये नगमा जो है, नगमात सना जो है, ये होती है इबादत। Now if you come to chapter 2, तो अब हम योना की किताब बाब नंबर 2 में आएंगे and in verse 3, और आयत नंबर 3 में, You had cast me to the deep, into the heart of the seas, and the current engulfed me, and the breakers and the billows passed over me. तूने मुझे गहरे समुंदर की तह में फेंक दिया और सैलाब ने मुझे घेर लिया। तेरी सब मौजें और लहरें मुझ पर से गुजर गईं। He says to God, You threw me into the deep. वो कहता है, ऐ खुदा तूने मुझे गहरे समुंदर में गर्क किया। You commanded the waters to pass over me. तूने पानियों को, सैलाबों को मेरे ऊपर से जाने दिया। He knew that God was chastening him. लेकिन वो जानता था कि खुदा उसकी तरबियत कर रहा है। In that hour of chastening, उस तरबियत के वक्त में he looks to the heaven, God of the heavens, वो फलकुल अफलाक में रहने वाले उस खुदा पर नजर डालता है and he says to him, और उससे मुखातिब होता है। I know this is a chastening that you have designed for me. और कहता है कि मैं जानता हूं कि ये तेरी तरबियत है जिसे तू मुझे तरबियत बख्श रहा है। I will look to thy holy temple. मैं तेरी पाक हैकल पर मैं नजर डालूंगा। So in this situation, we see a faithful God and a wayward child. और इस तरीके से हम इस हालत में वफादारी दिखाने वाले खुदा को देखते हैं और मनमानी से सरकशी करने वाले खुदा के फर्जंद को भी हम देख रहे हैं। How many times we have found ourselves in such a situation? कितनी बार हम भी इस हालत में अपने आप को भी पाते हैं ना, Strayed away from God's presence. खुदा की हुजूरी से, उसकी मौजूदगी से हम बरगश्ता हो जाते हैं, निकल जाते हैं। Far away, not recognizing His love. खुदा की मोहब्बत को तलब नहीं करते हुए उससे हम दूर भटक जाते हैं। When God chastens, that's the time we look unto Him. लेकिन जब खुदा तरबियत देता है तो उस वक्त हम उस पर नजर डालना सीखते हैं। In this chapter 2 and verse 8, यहाँ पे योना की किताब बाब नंबर 2 और आयत नंबर 8 में He says, Those who regard vain idols forsake their faithfulness. वो कहता है, जो लोग झूठे माबूदों को मानते हैं वो शफकत से महरूम हो जाते हैं। In the process, he admits some idols in his life. इस तरीके से वो अपनी जिंदगी में कुछ झूठे माबूदों की मौजूदगी भी वो मान ले रहा है। Have we not cherished idols in our heart? क्या हमारी जिंदगी में भी, हमारे दिलों में भी हमने भी कभी झूठे माबूदों को नहीं रखा? Idols of building a career, मतलब मेरा करियर को मैं तामीर करूंगा, idols of family priorities, और मेरी जिंदगी में मेरे घराने के
प्रायोरिटीज जो होते हैं, इस्तेहकाक जो होते हैं, वो मेरे लिए अहम है। Idols of amassing wealth, और मालो असबाब को मैं इकट्ठा करना चाहूंगा idols of pleasures. और खुशी का मैं तालिब रहूंगा। So here God is chastising his wayward child. इस तरह के माबूदों को रखने वाले अपने लोगों को, बच्चों को खुदा यहाँ पे तरबियत दे रहा है। So when we see the worship in verse 9, तो जब हम 9वीं आयत में खुदा की इबादत करते हुए इसे देखते हैं, we can come out with another lesson of a very ideal worshipper. तो एक अच्छे अफजल आबिद होने के लिए और एक सबक यहाँ लेते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। A true worshipper always remembers the chastisement of God. वो सबक ये है कि एक सच्चा आबिद जो होता है हमेशा खुदा की तरबियत से गुजरने के लिए पसंद करता है। He says to God, this disciplines of yours is very good for me. वो खुदा से यहाँ इस तरीके से वो कह रहा है कि तेरा नज़्मो ज़ब्त जो है वो मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। Job says, इयोब फरमाता है, blessed is the man whom God disciplines. वो कहता है जिस इंसान को खुदा तरबियत देता है वो मुबारक है। He says it's a blessing. वो कहता है ये तो एक बरकत है। So he boldly says to us, do not forsake the disciplines of the Almighty. इसीलिए वो दिलेरी से हमसे ये कहता है कि खुदा का मतलब ये खालिक जो है, खालिक की तरबियत से दूर ना रहना, तंग मत आना। So true worshipper and ideal worshipper always prioritizes God in his life. इसीलिए एक सच्चा आबिद जो होता है अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा खुदा को ही देता है। And according to the words of Jonah, worship is always making sacrifices. और योना की जुबानी में इबादत क्या होती है? इबादत होती है खुदा के सामने कुर्बानियां गुजराना। Without sacrifice, there can be no worship. कुर्बानी के अलावा इबादत होती ही नहीं है। That's what Abraham did. अब्राहम ने भी यही किया था ना। He says to his servants, उसने अपने नौकर से कहा था, we too will go on to that mount and worship. हम दोनों मतलब मैं और मेरे बेटे हम दोनों आगे बढ़ेंगे और उस पहाड़ पर जाएंगे और सिजदा करके आएंगे। But what was the actual intention of Abraham? लेकिन वहां पे अब्राहम के दिल में जो इरादा था वो क्या था? To kill Isaac and offer him as a sacrifice unto God. वो इरादा ये था कि मैं हम दोनों वहां जाएंगे और वहां मैं इसहाक का ज़बह करूंगा और कुर्बानी गुजरानूंगा। Today the standards of worship have never been altered. तो आज भी खुदा की इबादत के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनमें कुछ बदलाव नहीं आया है। The same sacrifice is required. कुर्बानी की जरूरत आज भी है। Offering the sacrifices of praise. हमदो सना के कुर्बानियां गुजरानने की जरूरत है। The fruit of our lips. हमारे होंठों की इबादत। But tucked up in that Hebrews chapter 13 and verse 15. लेकिन इब्रानियों की किताब 13 की 15 में हम पढ़ते हैं, It doesn't say occasionally. वो वहां लिखा हुआ है कि कभी कभार इबादत मत करना। It is not written like that. मतलब इन अल्फाजों में वहां लिखा नहीं रहा है। Continually. मुसलसल। And in Romans 12:1, रोमियो की किताब बाब नंबर 12 की 1 में लिखा हुआ है, offer your bodies as a living sacrifice. अपने बदन को जिंदा कुर्बानी करके खुदा के सामने पेश करो, which is your spiritual service of worship. ये खुदा के सामने नेक और पसंदीदा इबादत का अमल होता है। Our Lord responds to worship. हमारा खुदा जो है वो इबादत को लेकर रेस्पॉन्ड करता है। A worship is that which liberates you from all fears. इबादत क्या है? इबादत वो चीज है जो आपको हर एक डर से ऊपर खींच लेता है। Worship, what you call it, is so powerful. It alters, it affects the heart of God. इबादत इतनी बड़ी चीज है जो खुदा के दिल में भी बदलाव पैदा कर सकती है। And for what is the final lesson? तो यहाँ पे हम आखिरी सबक क्या लेते हैं? A true worshipper always we understand the needs of others. एक सच्चा आबिद जो है वो दूसरों की जरूरियात को याद रखता है। God was burdening Jonah
to speak to the Ninevites. खुदा ने तो योना के दिल में बोझ लाया था कि नीनवे लोगों के पास जाकर खुशखबरी की मनादी करे। God had already prepared their hearts. खुदा ने शुरू से ही, इससे पहले ही उन लोगों के दिलों को तैयार रखा है। What was required of Jonah? Just to go and present a 8-worded message. योना को क्या करना था? योना को सिर्फ वहां जाना चाहिए था और 8 अल्फाजों में खुदा का पैगाम सुनाना था। We know that 8-worded message was enough to convert everyone. और वो 8 अल्फाज वाला पैगाम जो है, हम जानते हैं कि उतना तो काफी था कि वहां के तमाम लोगों के दिलों में बदलाव लाने के लिए। What is God's desire? खुदा की मर्जी क्या थी? Not willing that anyone should perish. वो चाहता था और चाहता भी है कि कोई हलाक ना हो। That is 2 Peter chapter 3 and verse 9. 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 9 में हम ये बात पढ़ते हैं। But everyone should come to repentance. वो चाहता है कि हर एक इंसान नजात तक, यानी नए सिरे से पैदा होने के तजर्बे में आ जाए। Dear friends, if you look around us today, अजीजों, अगर हम हमारे चौगिर्द देखेंगे आज, we see people are distressed, तो आज हम देख रहे हैं कि लोग गमजदा हैं। knowing not where is the correct way for joy, peace and salvation. उनको पता नहीं है कि हकीकी राह कहाँ है जो हमेशा की खुशी और उम्मीद और नजात की हो। If you claim to be yourself to be a true worshipper, अगर आप अपने आप को एक हकीकी आबिद कहते हैं, your heart must unite with the heart of God. तो आपका दिल जो है खुदा के दिल से जुड़ जाना चाहिए। God wants us to take the message. खुदा चाहता है कि हम आगे बढ़ें और उसके दिल का ये पैगाम लोगों तक पहुंचाएं। In Matthew 9:36, I love that famous verse. मैथ्यू 9:36 जो है, वहां पे वो जो जुमला लिखा हुआ है वो मुझे बहुत पसंद है। When the Lord saw them, he saw them as a sheep without a shepherd. वहां लिखा हुआ है कि जब खुदावंद यीशुआ ने उन पर नजर डाली तो उनको वो लोग ऐसा लगे कि वो लोग भेड़ जैसे हैं जिनका चरवाहा ना हो। He saw them as depressed and distressed people. और खुदावंद यीशुआ को वो लोग बहुत गमगीन और बदकिस्मत या बहुत गमजदा जैसे दिखे थे। So a true worshipper unites his heart with that of God. Number one. तो पहली बात यह है कि एक सच्चा आबिद जो है वो अपने दिल को खुदा के दिल से जोड़ लेता है। Secondly, a true worshipper shares the burden of God. दूसरी बात यह है कि सच्चा आबिद जो होता है वो खुदा के दिल का बोझ अपनाता है। And thirdly, a true worshipper understands God's will for him. और तीसरी बात यह है कि एक सच्चा आबिद अपनी जिंदगी में खुदा की मर्जी क्या है करके जान भी लेता है। And fourthly, worship is the return gift that we give to him. और चौथी बात यह है कि इबादत जो है वो एक रिटर्न गिफ्ट जैसा है जो हम खुदा को पेश करते हैं। And sixthly, और छठी बात, and true worshipper recognize the chastisement disciplines of God. एक सच्चा आबिद जो है वो खुदा की तरबियत को जानता है और कबूल करता है। A true worshipper always prioritizes God in his life. एक सच्चा आबिद जो है हमेशा खुदा को ही अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा देते रहता है। With this revealed heart of God, let's worship him. खुदा के दिल के बारे में ये चंद बातें जो हमारे आगे पेश की गई हैं, इनके नूर में खुदा की इबादत हम आज शाम को करेंगे। Let's examine whether my heart is in frequency with that of God's heart. हाँ, हम जरा वो जांच लेंगे कि क्या मेरा दिल जो है खुदा के दिल के फ्रीक्वेंसी से जुड़ता है या नहीं।